السلام علیکم پیارے دوستوں اللہ والے، دو بہنیں اور ایک جادو آئینہ، اور کون سی بہن بن گئی ایک بندریا کی شکل کی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک اور واقعہ۔ بصرہ میں دو بہنیں رہا کرتی تھی اور وہ یتیم تھیں، لیکن ان کے ماں باپ نے اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ وہ آرام کی زندگی جی سکتی تھی۔ بڑی بہن بہت شاطر اور برے کام کرنے والی تھی اور چھوٹی بہن بہت ہی زیادہ سیدھی سادھی تھی، اللہ کے بہت قریب تھی، اور اس نے اپنے اچھے اخلاق سے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔ جو اس کو دیکھتا اس کی تعریف کرتا۔ دوسری بہن جلتی رہتی اور بہن کو تکلیف دینے کے لیے سازش کرتی رہتی کہ کسی طرح اس کی چھوٹی بہن لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ چالیں تو اس نے بہت چلی پر کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر وہ ایک ایسا عمل سیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن پر جادو کر کے اس کو کوئی جانور بنا دے، تاکہ وہ جانور اس کے گھر میں رہے اور اس پر وہ اپنی مرضی چلائے، حکمرانی کرے۔ بڑی بہن ایک قریب رہنے والے جوگی کے پاس جاتی جو کہ غیر مسلم تھا اور گندے عمل سیکھتی تھی تاکہ وہ اپنی بہن کو برباد کر سکے۔ ایک بار چھوٹی بہن قریبی جنگل میں سیر کے لیے گئی تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لاغر کمزور شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ ویسے بھی رحمدل تھی۔ اس نے اس بوڑھے کو اٹھایا اور اس کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس نے اس کے منہ پر پانی ڈالا تو وہ بوڑھا آدمی ہوش میں آ گیا۔ پھر پوچھنے لگی، بابا آپ کون ہیں؟ یہاں بے ہوش کیوں پڑے ہیں؟ وہ کہنے لگے، میں تو دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، شاید تکن کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، کئی دن سے میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ لڑکی کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، میرے گھر چلو، وہاں جا کر میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور آپ کا خیال بھی رکھوں گی۔ ویسے بھی میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ وہ بوڑھے آدمی دراصل ایک اللہ والے تھے اور تبلیغ کے سفر پر نکلے ہوئے تھے، لیکن لمبے سفر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ لڑکی بابا کو اپنے گھر لے آئی اور ان کی بہت خدمت کی۔ یہاں پر بڑی بہن نے جب ایک بوڑھے کو اس کے گھر پر دیکھا تو اس نے کہا، یہ کون ہے؟ تم کس فقیر کو اٹھا کر گھر لے آئی ہو؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی، دیکھو یہ بہت تکلیف میں تھے اور ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ بڑی بہن جل کر کہنے لگی کہ کس طرح کا فرض ہے؟ وہ تمہارا باپ ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی، میرے بابا جیسے ہی ہیں، اور تمہیں دکھتا نہیں کہ وہ نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، وہ اتنے کمزور ہیں کہ چل بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ایک نوجوان لڑکی ہو کر ان کی مدد نہیں کر سکتی؟ بڑی بہن کہنے لگی، نہ جانے کس بھیک مانگے کو اٹھا کر گھر میں لے آئی ہو تم، شرم نہیں آتی کہ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے تم اس سے بنا اجازت مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کر رہی ہو؟ چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی نیکی کرنے میں کسی سے کیا اجازت لینا، یہ تو اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ کسی کی پریشانی کو دور کرو، اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ وہ اللہ والے وہ چھوٹی بچی سے بہت خوش تھے۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ لڑکی بولی، لیکن بابا آپ کو تو نظر نہیں آتا، آپ تو نابینا ہو نا۔ اللہ والے بولے، بیٹا میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو، پر میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم رات میں نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا، کون سی نماز؟ عشاء کی نماز کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، یہ نماز وہ ہے جو جاگ کر پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک نیند لینے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، نہیں بابا، میری امی نے ایسا کچھ نہیں سکھایا تھا، بس وہی میں کرتی ہوں جو انہوں نے سکھایا، مجھے نہیں پتا یہ کون سی نماز ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، چلو آج تو میرے ساتھ عبادت کرنا۔ پھر وہ اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ اس کو اس عبادت میں بہت مزہ آیا۔ وہ فجر تک اللہ والے کے ساتھ عبادت کرتی رہی۔ بڑی بہن نے ایک دن اپنی بہن کو اس اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگی، یہ لوگ لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن ساری دولت اپنے نام کروا لے گی، میرے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے وہ عمل بھی وہی کرتا ہے۔ اس کی گھٹیا سوچ تھی تو وہ اسی طرح سوچ رہی تھی اپنی بہن کے بارے میں، جبکہ وہ بہن تو صرف اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اللہ والے جو اس کے استاد بن گئے تھے، وہ اس کو وہ علم دے رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہ ڈوبتی ہی جا رہی تھی، اور یہاں اس کی بہن اس سے نفرت کرتی جا رہی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس محبت کرنے کا وقت نہیں، اور انسان سے نفرت میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ انسان معاف تو نہیں کرتا۔ ایک دن بڑی بہن اپنے اس جوگی بابا کے پاس گئی اور کہا، جوگی بابا میری بہن پتہ نہیں اس بوڑھے کو کیوں اپنے گھر لے کر آ گئی، جو اندھا ہے، جس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ کچھ تو ایسا سیکھ رہی ہے
जिससे मुझे नुकसान होगा। वो इसके साथ रात के पिछले पहर ऐसा अमल करती है कि मुझे लगता है कि वो मेरे बाप की सारी दौलत हथिया लेगी और मैं कंगाल हो जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे अपने इल्म के जरिए जानवर बना दूं, और वो जानवर जो इशारों पर चले तो वो अपनी मनमानी भी नहीं करेगी। इसको नेकी करने का बहुत शौक है और अब तो न जाने कौन सा गंदा अमल कर रही है, जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा है। मुझे अपनी हिफाजत करनी है, इसलिए मुझे कुछ भी दो, ऐसा अमल जिसकी वजह से मैं बच जाऊं। तो जोगी ये कहने लगा, तू उसको वो कौन सा जानवर बनाना चाहती है? तो बहन ने कहा, कोई भी पालतू जानवर, बेजबान जानवर जो मेरे घर में रहे, मेरा वफादार बनकर। तो जोगी कहने लगा, तुम इसको बंदरिया बना दो, अच्छा है, तुम्हारी हिफाजत भी करेगी और तुम्हारी बात भी मानेगी, तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। ये सुनकर वो मक्कार हंसी हंसने लगी और कहा, यही तो मैं चाहती हूँ। अब वो रोज जोगी के पास जाकर वो गंदा अमल सीखने लगी। इसी शैतानी अमल के लिए इसे कब्रिस्तान में जाना पड़ता। कब्र को खोदकर एक मुर्दे को बाहर निकालती और इस मुर्दे के इर्द गिर्द दायरा खींचती और अपने शैतानों को पुकारती, मुझे ताकत दो, मेरी मदद करो, आओ। अब वो खुद मुसलमान तो ना रही थी। इस मुर्दे के साथ बैठकर इसने वो अमल 10 रातों तक करना था। यहाँ तक कि इसकी छोटी बहन अल्लाह वाले के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। वहां पर वो कब्रिस्तान के मुर्दों पर जादू करती, सिर्फ शैतानी ताकत पाने के लिए। इंसान किसी को तबाह करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर वो किसी के साथ अच्छा करना चाहे तो इसको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ अच्छा इखलाक, अच्छा दिल चाहिए, अच्छा अमल चाहिए। वो अपनी छोटी बहन को बर्बाद करना चाह रही थी, असल में खुद ही तबाह बर्बाद हो रही थी। दुनिया भी बर्बाद हो रही थी और आखिरत में भी अपने लिए जहन्नम का सौदा कर रही थी। अब यहाँ पर छोटी बहन दिन रात अल्लाह को मनाने के लिए इबादत करती रहती। अल्लाह वाले उसे रोज दुआ देते और कहते, बेटी अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे, तुमने मेरी खिदमत की, इस खिदमत के बदले तुम्हें वो मुकाम मिला है कि तुम सोच भी नहीं सकती। फिर एक दिन अल्लाह वाले कहने लगे, अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ। तो वो लड़की बहुत उदास हुई। इसने कहा, बाबा आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अल्लाह वाले कहने लगे, अल्लाह सबसे बड़ा निगहबान है, इसके सिवा कोई अपने बंदे की हिफाजत नहीं करता। हाँ, इसने वसीला जरूर बनाकर भेजा था मुझे। इसने हम सबको एक दूसरे की मदद के लिए पैदा किया है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं और इसके गुलाम हैं। एक मकसद है जो हम पूरा कर रहे हैं और हमें एक दूसरे के काम ही आना चाहिए। और इसकी रोशन मिसाल तुम खुद हो, जिसने एक बूढ़े अंधे फकीर को अपने घर में रखा और इसकी बहुत खिदमत की। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा आबाद रखे। मैंने तुमको जो बातें सिखाई हैं, इन पर अमल करो और लोगों की खिदमत करने से पीछे नहीं हटना। फिर एक दिन अल्लाह वाले वहां से रुखसत हो गए। वो लड़की अकेली रह गई। इसको बहुत बुरा लगा। बड़ी बहन ने देखा कि अब मेरी बहन अकेली है, तो वो वक्त आ गया है कि इस पर मैं अपना अमल करूं। उस रात को एक बड़े से कब्रिस्तान में गई। ये आखिरी रात थी, 10वां दिन था। कब्र खोदकर मुर्दे को बाहर निकाला। इसके गिर्द से इसने दायरा बनाया। फिर इसने आंखें बंद करके अपना विर्द करना शुरू कर दिया। वो शैतानों को याद करती जा रही थी और कब्रिस्तान की वहशत बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसे सिर्फ अपनी छोटी बहन से बदला लेना था। इसी वजह से वो इस वहशत और भयानक रात से नहीं डर रही थी। अचानक से एक जोरदार कान फाड़ने वाली आवाज सुनाई दी। किसी ने कहा, जा, तुझे वो इल्म मिल गया है, अब तू जिसे चाहे, जो भी जानवर बनाना चाहे बना देगी। वो बहुत खुशी हुई। उसको तो लग रहा था कि इसने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसको ये खुशखबरी मिली थी। इसने जोगी बाबा के पास आकर कहा कि मुझे वो इल्म मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने 10 दिनों में ये इल्म किया जिसका फल मुझे मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं कामयाब हो गई। अपने घर जाऊंगी और अपनी छोटी बहन का हशर बुरा कर दूंगी, जिससे मुझे नफरत है, जिसने मेरा जीना अजाब किया हुआ है। जोगी कहने लगा, जाओ, लेकिन ख्याल रखना, मेरे पास जो है वो इसके पास नहीं, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो गरूर से कहकर अपने घर आ गई। पहले इसने चालबाजी के साथ अपनी बहन के साथ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। इसका ख्याल रखती, इसके सारे काम करने लगी। छोटी बहन मोहब्बत की मारी अपनी बहन की मोहब्बत को सच मान रही थी, लेकिन वो सिर्फ इसको अपने जाल में फंसाना चाहती थी। एक रात बड़ी बहन ने पूरी तैयारी कर रखी थी इस खास अमल को करने के। वो बैठ गई। यहाँ छोटी बहन तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हो गई। बड़ी बहन कहने लगी, कौन है? इस वक्त कौन आ गया? जब इसने दरवाजा खोला तो सामने वही अल्लाह वाले खड़े थे। इसने कहा, इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? तो अल्लाह वाले ने कहा, एक रात यहाँ पर रुक सकता हूँ? तो कहने लगी, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो,
अल्लाह वाले बोले, तुम मुझे जानती हो? गौर से मुझे देखो। इस बड़ी लड़की ने गौर से इन्हें देखा तो वही अल्लाह वाले थे, नाबीना अल्लाह वाले। लेकिन वो झूठ बोलने लगी कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं पहचानती, यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। छोटी बहन आ गई, अल्लाह वाले को पहचान कर खुशी से कहने लगी, अरे बाबा आइए, अंदर आइए। वो इनको अंदर लेकर आ गई। बड़ी बहन को गुस्सा बहुत आया कि आज रात तो मेरे अमल का खात्मा होना था और ये बूढ़ा अंधा फिर आ गया। खैर कोई बात नहीं, इसको कौन सा दिखाई देता है, मैं अपना काम आसानी से कर सकती हूँ। इसके बाद इसने फिर से वो गंदा अमल शुरू कर दिया और बहन से कहने लगी, मेरी बहन, अरसे से हम दोनों साथ रहती हैं, हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं और हम दोनों की मोहब्बत मिसाली है। छोटी बहन बहुत खुश थी कि इसकी बड़ी बहन इससे मोहब्बत करने लगी है और साबित भी कर रही है। फिर बड़ी बहन बोली कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम एक नेक बंदी हो और तुम सबकी मदद करती हो। जो कुछ वालिदैन ने सिखाया है तुम वही अमल करके लोगों के दिल को जीत रही हो और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे हाथों से तोहफा लोगी। इसने कहा, किस तरह का तोहफा है बाजी? वो कहने लगी, एक आईना है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इस आईने को देखकर जो भी अपने आप को संवारेगा वो दुनिया का सबसे हसीन इंसान बन जाएगा। छोटी बहन ने कहा, लेकिन मुझे खुद को हसीन करने की जरूरत ही क्या है, मैं दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं करती। तो बड़ी बहन कहने लगी, अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तो सही आईना कितना खूबसूरत है, बस एक बार देख लो। वो आईने को सामने रखकर देखने ही लगी थी कि अल्लाह वाले बोले कि रुको बेटी, और बड़ी बहन से बोले, मुझे लगता है कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो, पहले तुम इस आईने को देखो क्योंकि तुम इसकी ज्यादा हकदार हो। बड़ी बहन ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? अल्लाह वाले बोले, बेटा आंखों का अंधा हूँ, दिल का नहीं। बड़ी बहन ने सोचा, मैंने तो अपनी छोटी बहन के लिए इसको तैयार किया है, यानी इस पर जो अमल जो जादू टूना है वो मेरी छोटी बहन के लिए है और मैं शीशे को देख ही लेती हूँ। गरूर से बड़ी अकड़ से जैसे ही इसने आईने को देखा वहां पर एक बंदरिया की शक्ल थी और जैसे ही इस बड़ी बहन ने इस बंदरिया की शक्ल देखी वो बिल्कुल वैसी ही बन गई। अब वो इंसान नहीं थी बल्कि एक जानवर थी। फिर चूंकि वो इंसानों की तरह बोल सकती थी, इसने कहा, ये क्या हुआ मेरे साथ? अल्लाह वाले बोले, तूने अपनी छोटी बहन के लिए घड़ा खोदना चाहा और असल में तू खुद ही इस घड़े में गिर गई। तुम समझ रही थी कि तुझ पर यह आईना कोई जादू नहीं करेगा, लेकिन हम भी अल्लाह के बंदे हैं। तो यहाँ पर अपना अमल कर रही थी, वहां पर हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि जो कुछ तू कर रही है तुझ पर ही उलट हो जाए। तुम जादू करके अपनी बहन को तबाह करना चाहती थी, इसको एक जानवर बना देना चाहती थी। अब तुम्हें एक जानवर बना दिया गया है, एक ऐसा जानवर जिसको देखकर किसी को भी कराहत आ जाए, लेकिन तुम एक ऐसा जानवर बन गई हो जो हर जगह पर उछलता कूदता फिरे और लोग इसको देखकर हंसते रहें। तुम एक बंदरिया की शक्ल बन चुकी हो ताकि तुम अपने आप को देखो और सोचो कि क्या किसी के लिए ऐसा करना चाहिए। अब तुम एक जानवर बन गई हो और जिंदगी भर जानवर बनी रहोगी। बताओ इशारे पर कौन चलेगा, तुम या तुम्हारी बहन? हसद, लालच और हिर्स ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम दौलत को हासिल करने के लिए यह सब अमल कर रही थी। अल्लाह ताला ने तुम पर ही तुम्हारे अमल को उलट दिया। शैतान से मांगोगी तो तबाही होगी, अल्लाह से मांगोगी तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में अपनी बहन की मोहब्बत डालता और तुम दोनों सुखी रहती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अल्लाह वाले कहने लगे, ऐ मेरी छोटी बेटी, तुमने अपने अच्छे अमल से अल्लाह पाक को राजी कर लिया। अल्लाह रब्ब करीम ने तुम्हारी हिफाजत के लिए हमें भेज दिया, वरना हम भी अल्लाह के आजिज और अदना से बंदे हैं। तुम्हारे अच्छे अमल ने तुम्हें बचा लिया, अब हम चलते हैं। छोटी बहन कहने लगी, बाबा आप रुक जाना, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बहन को अपना माना, वो भी मेरे खिलाफ काम करती रही, इसको तो इसकी सजा मिल गई। बाबा आप क्यों जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा, नहीं, हम इसी काम से यहाँ आए थे और तुमको याद होगा बेटी, मैं एक दिन तुम्हें जंगल में मिला था, बेहोश पड़ा हुआ। दरअसल मैं बेहोश नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसी दिन से हमें तुम्हारी हिफाजत करने का हुक्म दे दिया था। और अल्लाह ताला पर हमेशा यूं ही भरोसा रखना, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल करने वाले हमेशा आफतों से बचते हैं। और यूं ही नेकी करते रहना, हमेशा लोगों का साथ देना। तुम्हारी बहन ने अपने अमाल की सजा पा ली और तुमने अपने अमाल की जजा। इसके बाद अल्लाह वाले वहां से चले गए। मोहतरम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में था बस इतना ही। मजीद ऐसी इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा।